Hello students, let's start with lecture 4 on the topic relations and functions. Till now we have studied about sets and how to represent a set, and moreover the cross product of two sets we had discussed. Now in this lecture we are going to start with relations. Because relations and functions are in fact very closely related, but functions are a bit different from relations. So first we will discuss relations, then we will come to functions. Now see, the notion of term relation is already known to you, because you are already in many human relations, being a human. Like if I say X is son of Y, so here X is related to Y and the name of relation is what? Is son of. This is the name of relation. Similarly, any person can be father of another person. So X is father of Y, X is daughter of Y, X is sister of Y, X is student of Y, X is teacher of Y. In this way, any two persons can be related. But when it comes to physical world and the natural phenomena, then we need to establish relation between two different physical quantities, not between two persons. So, and here our subject matter is to understand physics in order to solve the numericals or problems related to physics or other branches of natural sciences. So now let us take an example. For example, if we have a container, cylindrical container, let us say, tightly fitted with a movable piston, some gaseous molecules are present inside the container. Now see the volume, let the volume of container be V at some instant. If you will apply a pressure to compress the gas, then the volume of the gas will be decreasing. So now you can say one physical quantity, volume, is having some relation with another physical quantity, pressure, and the phenomena is what? Compression of the gas. So this natural phenomena involves these two physical quantities and they are related to each other in some way. There is some relation between them. Now if we are interested in the study of such type of relations between two physical quantities, in fact this is a very simple case, very simple phenomena. In complex phenomena, many physical quantities are interrelated to each other in very complex way, but we will start from the very simple cases so that we can proceed up to the complex cases, because all of the complex relations are composition of simple relations. So first we will try to understand the simple relations. Now before proceeding towards the other aspects of relations, here we must mention the very core of scientific study. What is in the core of scientific study? Whenever we go for scientific study, cause and effect phenomena is in the core. See for example, सेब पेड़ से गिरा, ये एक इफेक्ट था जो न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया। पेड़ से सेब का गिरना एक इफेक्ट था जो ऑब्जर्व किया गया, इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया। फिर न्यूटन साहब ने उस इफेक्ट के कॉज को ढूंढने का प्रयत्न किया।
और काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द कॉज। इस सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, और अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी साइंटिफिक स्टडी हुई है उसमें कोई इफ़ेक्ट ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट्स के द्वारा, और फिर उसके कॉज को इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ये कॉज और इफ़ेक्ट के बीच के रिलेशन को ही तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यदि हमें कोई इफ़ेक्ट दिखा तो उसका कॉज क्या है, और वो कॉज और इफ़ेक्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। क्योंकि यदि हम किसी भी इफ़ेक्ट के कॉज को जान जाएं और वह इफ़ेक्ट कॉज से कैसे रिलेट हो रहा है ये रिलेशन जान जाएं, तो हम इस पूरे फिनोमेना को गवर्न कर सकते हैं। कॉज को अगर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज करेंगे तो इफ़ेक्ट अपने आप हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंज होगा, और यही ह्यूमन अचीवमेंट है। इंसान ने यही किया इतने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में कि किसी भी फिनोमेना के कॉज को जब इफ़ेक्ट और कॉज का रिलेशन समझ गए हम, तो फिर हम उस पूरे फिनोमेना को गवर्न कर सकते हैं। आज अगर हम एटॉमिक रिएक्टर्स बना पा रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी से यूज़फुल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस नेचुरल फिनोमेना में जो भी इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कितनी एनर्जी निकलेगी, है ना, कितना इनपुट देना होगा, क्या आउटपुट होगा, क्या प्रोसेस है, डिफरेंट टिपिकल फिनोमेनाज आर देयर एंड क्वांटिटीज़ आर इन्वॉल्व देयर। तो इन रिलेशंस को जान के ही हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर का लगाना ये कॉज था और इफ़ेक्ट क्या था, वॉल्यूम का घटना। तो इस तरीके से हम अब चीज़ों को आगे समझेंगे। कॉज और इफ़ेक्ट फिनोमेना पे एक बात कहा जाना ज़रूरी है कि मानिए कॉज को हम एक वेरिएबल x मानते हैं और इफ़ेक्ट को हम दूसरा वेरिएबल y मानते हैं। हम ये वेरिएबल का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को समझ के और उसे फिज़िक्स या अन्य ब्रांचेस में अप्लाई करना है। इस अप्लाइड एस्पेक्ट को हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। पूरे डिस्कशन में मैथमेटिक्स के हम उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को ज़रूर समझते हुए चलेंगे, अदरवाइज़ रियल चीज़ को हम मिस कर जाते हैं। तो अब x को एक वेरिएबल मान लिया कॉज को, y इफ़ेक्ट को मान लिया। इन दोनों के रिलेशन को अगर हम समझेंगे तो हम इस पूरे फिनोमेना को कैसे गवर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यही वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मानिए कि अब देखिएगा आप कैसे यहाँ पे इस फिनोमेना का फिजिक्स से कनेक्शन है, कैलकुलस से के बिल्कुल अर्ली टॉपिक से कैसे ये कनेक्ट हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए। मानिए कि जिस वक्त प्रेशर P1 था उस वक्त वॉल्यूम V1 था। एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं हम लोग, या हम एक सेट बना लेते हैं, प्रेशर का एक सेट बना लेते हैं और वॉल्यूम का दूसरा सेट। प्रेशर वाले सेट को x नाम दे देते हैं और वॉल्यूम वाले को y नाम दे देते हैं। अब मानिए कि जब प्रेशर P1 था और उस वक्त वॉल्यूम V1 था, प्रेशर को हमने चेंज किया, बढ़ाया मान लीजिए। उस वक्त जब प्रेशर हमने P2 कर दिया बढ़ा के, तो वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, कंप्रेस हो गया होगा, घट गया होगा। लेट दैट वॉल्यूम बी V2। इस तरह से हम अगर n वैल्यूज़ प्रेशर की लेते हैं Pn, तो हमें डिफरेंट वॉल्यूम की वैल्यूज़ मिलेंगी Vn। और निश्चित रूप से यह वाला एलिमेंट x सेट का जो प्रेशर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस वाले वॉल्यूम से रिलेट हो रहा होगा, इस सेट का। अब आप देखिए सेट के नॉलेज को हम यहाँ किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। दो सेट्स बन गए और निश्चित रूप से ये नंबर्स रियल नंबर्स होंगे, कोई इमेजिनरी नंबर तो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही रियल नंबर एलिमेंट्स होंगे इन दोनों सेट्स में, और इन दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। कैसे रिलेट हो रहे हैं ये आगे का सब्जेक्ट मैटर है, मगर रिलेशन हो रहा है। इस सब्जेक्ट मैटर को समझिए कि दो सेट्स आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। जो सेट्स का नॉलेज मैंने आपको पीछे दिया है, बिल्कुल देखिए वो चीज़ कैसे यहाँ पे फिजिकल फिनोमेना को समझने में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब इसी चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल को साइलेंट कर दें और प्योर मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं, तो हम सिंपली यही कहते हैं कि सेट x है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं,
लिखिए, फिर से लिख लेते हैं हम। सेट x है, एलिमेंट्स का नाम दिया x1, x2, x3 डॉट 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 xn लेट्स है। उसी तरह y दूसरा सेट लिया, नाम दिया एलिमेंट्स को y1, y2, y3 डॉट 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 ym नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से। और हम मैथमेटिक्स में अपने को नंबर्स में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, फेनोमेना का कोई साइटेशन नहीं होता है, कोई एग्जाम्पल नहीं होता है जनरली जब हम मैथ्स के डोमेन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। बट इन रियलिटी इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फिजिकल फेनोमेनास को पढ़ने में ही जाता है। तो अब हम अपने को यहाँ से मैथमेटिक्स तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे और एक बात अवश्य समझेंगे कि यह एक सेट x, अब जरा देखिए इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। x सेट को जनरली, जो जनरल मान्यता है, कन्वेंशन है, x सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या आशय है ये अभी बताएंगे आपको। और y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन टर्म्स की मीनिंग को बहुत क्लियर करिए क्योंकि ये टर्म्स आपके सामने बार बार आएंगे। जरा देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझते ही हैं। वेरिएबल मीन्स एनीथिंग विच इज एबल टू वेरी, जो परिवर्तनशील हो, जो बदल सके, बदलने की योग्यता रखता हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, एबल टू वेरी। तो ये तो दोनों ही में कॉमन टर्म है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है? अब देखिए, जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? जो मुक्त हो, जो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। और डिपेंडेंट का मतलब जो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो, आश्रित हो। बस इसी तरह इसको समझना है हमें। अब आप देखिए, क्यों ना हम कहें इसे इंडिपेंडेंट, अगर हम किसी फेनोमेना से रिलेटेड कॉज और इफ़ेक्ट, यानी उस फेनोमेना का जो इफ़ेक्ट हमने ऑब्जर्व किया और उस इफ़ेक्ट के पीछे जो कॉज था, उस कॉज को इन्वेस्टिगेट कर लिया और दोनों के रिलेशन को अगर हम समझ गए, और अब अगर हम कॉज को स्वतंत्र रूप से, जो कारण है इफ़ेक्ट का, उसको अगर हम वेरी कराएं, चेंज कराएं, तो क्या इफ़ेक्ट हमारी ज़रूरत के हिसाब से वेरी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए हम कॉज को x से डिनोट करते हैं। एक वेरिएबल तो x होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, इसको हम इंडिपेंडेंटली चेंज कराएंगे। ये हम चेंज डेलिबरेटली हम कराएंगे, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया। और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे कि ये y जो इफ़ेक्ट है ये कैसे इस पे x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें y और x के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा कि x को चेंज कराने पे y कैसे चेंज कर रहा है। जब हम इस तरह से n नंबर ऑफ x की वैल्यूज़ लेके और n नंबर ऑफ y's की वैल्यू लेके और एक रिलेशन को हम एम्पिरिकली स्टडी करेंगे, इसको हम एम्पिरिकल स्टडी भी कहते हैं, एम्पिरिकल एनालिसिस भी कहते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस इफ़ेक्ट का इसके कॉज से कैसा रिलेशन है। तो बेसिकली हमें यहाँ एक वेरिएबल जिसे हम कॉज कह रहे हैं, विच इज़ द इन द कोर ऑफ साइंटिफिक स्टडी, इस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कहेंगे और वह इफ़ेक्ट जो दूसरा वाला वेरिएबल है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि यह इस पे डिपेंड कर रहा है और हमारा इंटरेस्ट है इसके डिपेंडेंस को, इसके ऊपर कैसा डिपेंडेंस है इसको स्टडी करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जो कि आप इस एग्जाम्पल से, अब कम बैक टू दिस एग्जाम्पल, अब आप इससे और बेहतर समझेंगे कि भाई अगर हम प्रेशर को वेरी करा रहे हैं जो कि कॉज है किसका, वॉल्यूम के चेंज होने का, इफेक्ट क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम प्रेशर को इंडिपेंडेंटली वेरी कराएं और ये देखें कि वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है, तो क्या हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन का नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स को फिज़िक्स में या और तमाम विधाओं में, जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है तो आप किसी एक कमोडिटी के प्राइस को वेरी कराइए और ज़रा देखिए डिमांड कैसे वेरी कर रही है मार्केट में।
जब आप प्राइस को वेरी कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर अभी भी खरीद रहा है कि नहीं। तो उस प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड दोनों के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। अब आप समझ सकते हैं इस तरह से आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच जो रेलेवेंट स्टडी में किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंस इस सब्जेक्ट मैटर का, रिलेशंस का, ठीक है। और अब एक और ख़ास बात, चूँकि यहाँ हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं x एंड y, कोई तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जब भी किसी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को हम स्टडी करते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन। बाई का मतलब क्या होता है? टू, ट्राई मने तीन, मोनो मने एक, ये तो आप जानते ही हैं। तो बाइनरी रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। अब इस डिस्कशन के बाद अगला डिस्कशन होगा हमारा टाइप ऑफ रिलेशंस पे। कुछ नए टर्म्स हम जानेंगे कि डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, को डोमेन किसे कहते हैं, कुछ नए टर्म्स आएंगे, इमेजेस किसे कहते हैं, प्री इमेजेस किसे कहते हैं। जैसे इस पूरे डिस्कशन में आपको कुछ नए टर्म्स पता चले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है, और कॉज और इफेक्ट का क्या मतलब है। अब हम अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, डोमेन सेट की मीनिंग, को डोमेन सेट की मीनिंग, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कहाँ? फंक्शंस की तरफ। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Thank you.